गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं रिसीवेबल्स का। दैट इज लेक्चर नंबर 2। आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर 1 एंड आई हैव टोल्ड द बेसिक कांसेप्ट्स इन रिगार्ड टू रिसीवेबल्स। तो आज टुडे द लेक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, दैट इज अ वेरी डिसिसिव लेक्चर, सो यू हैव टू अटेंड वेरी अटेंटिवली। बेटे बड़े ध्यान से अटेंड करना है और एक एक बात को लिखना है। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है and I will be discussing the test your understanding questions of Kaplan also. तो आप रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 10 रिसीवेबल्स, वेरी स्मॉल वेरी इजी चैप्टर, बट आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है। लेक्चर नंबर 2 आज लास्ट लेक्चर है बेटे, इसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने लिखा बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप ACCA क्लियर कर सकते हो। दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती बेटे, आपका अपना फेथ अपने ऊपर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिलीव इन योरसेल्फ। फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड these basic concepts in regard to account receivable। मैंने बड़ी मेहनत से ये सब बनाया और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जूस नोट्स में निकाल लें। चलिए जूस नोट्स अभी देख लेते हैं। एक बार पहले आप इसको देख लें, उसके बाद जूस नोट्स में जाएंगे। Credit sales. I have told you something about account receivable in the last lecture. I told you that there are two types of sales. One is cash sales, second is credit sales. Why it is important to have a credit sale? Because there is a tradition in the market. सभी पिछले इतने वर्षों से क्रेडिट देते आ रहे हैं और आप एक न्यू प्लेयर हैं, तो you have to give the credit. And because of growth, because of profit, because you want to attract the customers, because you want to have the market share, you have to give the credit sales. Now the net result, there are some positives and there are some negatives of credit sales. The negative is there will be incidence of bad debts, there will be incidence of irrecoverable debts. तो बेटे वो जो debts जो recover नहीं हो सकते due to so many reasons. The second concept which we have discussed in the last lecture is regard to debts, bad debts, and then we will be discussing today recovery of bad debts. हमने last time bad debts declare कर दिए, but आज हम उसको recover कर रहे हैं. For example, in one accounting year, let it be 2005 accounting year, those debts were declared bad, but in 2006 because of bankruptcy proceedings something has been recovered from that, so that is named as recovery of bad debts. तो आज हम ये देखेंगे कि अगर bad debts हमने पहले declare कर दी है, then after that it has been recovered, then what journal entry we will be passing for that? Allowance for receivables, provision for debtors. कि what are the journal entries for provision for debtors? Allowance for receivables क्या होता है? As per the prudence concept, if you think that in coming future there can be a loss, तो बेटे हम उसको जनरली बोलते हैं allowance, provision for debtors. Allowance for discount on receivables we have not covered क्योंकि आपके उसमें नहीं है, but we have, हम जनरली बाकी सब कोर्सेज में मैं कराता हूँ allowance for discount on debtors. क्रेडिट लिमिट्स की बातें हमने की। तो बेटे ये फर्स्ट पॉइंट है, आप अगर बनाना चाहें तो प्लीज बनाइए बेटे, बड़ी मेहनत से मैंने ये चित्र आपके लिए ड्राइंग बनाई है, so that you can get a brief idea in regard to receivables which we have discussed in the last lecture. फिर मैंने आपको कैश सेल्स की एंट्री बताई थी, फिर क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताई थी और फिर बैड डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी थी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बैड डेट्स हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर इट हैज बीन रिकवर्ड ऑल्सो, अब आपने जब बैड डेट्स कर दिए तो इट हैज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव ऑलरेडी पास द एंट्री। आपने क्या एंट्री पास की होगी? डेबिट बैड डेट्स, credit account receivable, and then you have prepared the bad debts account. The balance in that bad debt account must have been transferred to profit and loss account. सब कुछ खत्म हो गया बेटे, मर गया, अचानक आत्मा जिंदा हो गई और उसने कहा ये लो पैसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने बैड डेट्स की हो, ऐसे कस्टमर ने, उसको रात को सपने आते हो, ड्रीम्स आते हो कि भैया अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे साथ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो उसने क्या किया, अगले दिन जाकर ठकठकाया दरवाजा, किसका? The person from whom he has purchased the goods on credit, और उसको जाकर पैसे रिटर्न कर दिए। So this is named as recovery of bad debts. Still I am not concerned that what are the reasons for the recovery of bad debts. One of the most prominent reason can be bankruptcy proceedings or due to any other reasons also. We are not concerned with that. आज के इस लेक्चर में बेटे हमारा मेन कंसर्न है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें उन बैड डेट्स रिकवर्ड की। जब आपको कैश मिला, अच्छा आप ये बताइए बैड डेट रिकवर्ड होगा तो कैश रिसीव ही तो होगा।
आप कैश को रिसीव कर रहे हैं, बट बेटे इनकम है, इनकम का कुछ तो नाम होगा, इनकम का नाम होगा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, सिंपल सा नेम। एसीसीए वालों ने कुछ अलग से नाम यूज किया है, बट द लॉजिक इज दिस ओनली। आप ये वाला नाम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। नाउ दैट रिकवरी ऑफ बैड डेट का अकाउंट जब हम बनाएंगे, द बैलेंसिंग फिगर वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए हम चलते हैं बेटे अकाउंटिंग फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। जल्दी से बेटे अपना रजिस्टर ओपन कर लें और लिखें अकाउंटिंग फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, अकाउंटिंग फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स और अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। और देखिए मैंने कितना अच्छा आपके लिए एक चित्र बनाया है कि इन दिस अकाउंटिंग ईयर ये मर गया, कौन मर गया? कस्टमर। कौन सा कस्टमर? टू होम वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया, भाग गया, कुछ भी है, मर गया, बट नेक्स्ट ईयर वो जिंदा होके बैठ गया। It means in first year we have incurred a loss named as bad debts, named as irrecovered debt, and in the next year we are recovering that loss. So we have to pass the entries for this. We have to pass the entries for this. In this year हमें entry pass करनी चाहिए। तो मैं आ गया जी, in case bad debts written off in one accounting period, in the previous accounting period or in any accounting period, we are not concerned with that. कुछ भी हो सकता है, 5 साल बाद भी तो रिकवर हो सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में उसने लॉस हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकवरी हो गई। इन केस बैड डेट्स रिटन ऑफ इन वन अकाउंटिंग पीरियड बट ड्यू टू बैंकरप्सी एटसेट्रा प्रोसीडिंग्स बैड डेट्स आर रिकवर्ड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। एक में बैड डेट्स हो गए, अगले में रिकवर्ड हो गए, या आफ्टर दैट रिकवर्ड हो गए इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, देन in the next accounting period when they are recovered I should pass a journal entry for that, and again I will be using accounting equation approach. Capital plus liability is equal to assets. कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, जब एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डेबिट कैश, and my income will increase, my capital will increase. Now that capital is increased due to recovery of bad debt, so I will credit the reason of that income which is bad debt recovery. तो बेटे एंट्री हो गई कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट बैड डेट रिकवरी। चलिए जी, चलिए दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी बेटे 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम आराम से क्वेश्चंस को करेंगे, या ऐसा करते हैं पहले कुछ 1-2 क्वेश्चंस ही देख लेते हैं सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए बेटा। चलिए जी, जूस नोट्स निकाल लीजिए बेटे, जूस नोट्स निकालिए, हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिकवरेबल डेट्स वी हैव कवर्ड। मैंने लिखा ना इन ड्रीम्स, उसको सपने में आया कि भैया जाके पैसे दे आ, नहीं तो भूत भूतनी आ जाएंगी, तेरे को मार देंगी, तो उसको सपना आया। सपना किसका? भूत का। प्लीज रिटर्न द मनी। तो बेटे उसने पैसे वापस कर दिए, फिर उसने पैसे वापस कर दिए तो एंट्री होगी। मैंने एंट्री आपको ऑलरेडी बता दी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैं आपके कैप्लॉन का कर रहा हूं, बट मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, तो आप घबराइएगा मत। आपके पास कैप्लॉन है तो आप कैप्लॉन निकाल लीजिए, ये देखिए कैप्लॉन निकाल लीजिए, कैप्लॉन निकाल लीजिए, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ये लीजिए, रिसीवेबल्स आ गया बेटे, यही तो है कैप्लॉन, रिसीवेबल्स आ गया। रिसीवेबल्स के बाद आप देखिए इसमें बेनिफिट्स, कॉस्ट, ये सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, यू नो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माय ओन स्टोरी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर डूइंग विद, उसका मैंने जस्ट नाम चेंज कर दिया, आप देखें वही है, फिगर्स वही रखी है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हैज टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ इट्स अकाउंटिंग पीरियड as $45,000. Of these terms, it is discovered that Mr. X, जिन्होंने हमें $790 देने थे, बेटे ये पिछले साल का अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस चलता आ रहा है, और उसमें बैलेंस में 45,000 रुपीज इज माई एसेट फॉर दिस हिंदुस्तान लीवर, या जो भी कंपनी का नाम है, अगर आप कैप्लॉन से देख रहे हैं। It means this is the balance carried forward for the last year, and I have brought down in this coming year in the year 2006, जो भी year है, और उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने हमें $790 देने थे एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, बेटे घोषित हो गया क्या, बैंकक्रप्ट, दिवालिया निकल गया बेटा उसका। एंड अनदर गेव हिम, मिस्टर जोन्स टोटली डिसअपियर्ड, एक तो भाग ही गया बेटे, बिल्कुल ही शहर छोड़ के भाग गया, सिटी छोड़ के भाग गया, पता ही नहीं कहां है, और दूसरा दिवालिया घोषित हो गया बेटे। आप बताइए, हिंदुस्तान लीवर के तो दो लॉस हो गए, एक का दिवालिया घोषित हो गया, दैट इज इरिकवरेबल डेट, दैट इज बैड डेट, एंड सेकंड इज बैड डेट नंबर 2, जो छोड़ के भाग गया बेटे, इसकी नियत ही खराब होगी, इंटेंशन ही खराब होगी। ठीक है जी, ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ राइटिंग ऑफ दिस इरिकवरेबल, तो आपको उसका फाइनेंशियल इफेक्ट निकालना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कोई मुश्किल है ही नहीं बेटे। मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ऑन ही रखें और उस रजिस्टर में मैं जो करा रहा हूं उसको ध्यान से नोट करें बेटे, बड़ी प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, बड़े वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स फॉर यू। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। बेटे देखिए मैंने क्या किया आपके लिए, पहली बार फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, दिस इज T0, दिस इज T12 एंड द बैलेंस इज $45,000। बेटे $45,000 का बैलेंस है। 45,000 के बैलेंस में एक व्यक्ति मर गया, भाग गया, बैंकक्रप्ट हो गया, जिसने हमें कितने पैसे देने थे, $790। और दूसरा बेटे भाग ही गया, देखो मैंने भागता हुआ निशान लगाया है, $1,240 दैट पर्सन हैज टू गिव अस। बेटे एक ने 790 देने थे, दूसरे ने 1240 देने थे। अब आप ये बताइए मुझे इनकी एंट्रीज पास करनी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कैपलॉन पीपल दे हैव डायरेक्टली प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, बट बेटे भूपेश आनंद आपको पहले जर्नल एंट्रीज बताएगा और उनकी पोस्टिंग करेगा। आइए फर्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं बेटे। फर्स्ट इज जो पहला बैड डेट हुआ, दैट इज बैड डेट नंबर 1 और इरिकवरेबल डेट 1। तो मैंने एंट्री पास किया कि डेबिट बैड डेट, debit irrecoverable debt, and the logic I have already told you with help of accounting equation that why we are debiting loss, why we are debiting loss। एक बार आप देख लीजिए, आप जल्दी से एंट्री देखिए, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ।
सर मैं पानी पीकर आ गया। तो बेटे आपने फर्स्ट एंट्री लिख ली, डेबिट बैड डेट $790, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल $790। वाई वी आर डेबिटिंग बैड डेट्स एंड वाई वी आर क्रेडिटिंग अकाउंट रिसीवेबल्स वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बेटे दूसरा बैड डेट भी हुआ, वो जो भाग गया, बैड डेट नंबर 2। सो बैड डेट डेबिट और इरिकवरेबल डेट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 1240। बस बेटे और क्या, आप रिसीवेबल्स अकाउंट बना देंगे। पिछली बार का बैलेंस आ गया, हमने उस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट बैड डेट की पोस्टिंग कर दी, सेकंड बैड डेट की पोस्टिंग कर दी, और आप देखिए मैंने बैड डेट अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया। 790 यहाँ पर आ जाएगा, 120 यहाँ आ जाएगा, एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैड डेट्स विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटे मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन इजीली कर दिया। अच्छा ये जल्दी होने का राज क्या रहा? बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट, आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन, आई हैव पास द एंट्रीज एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड द लेजर अकाउंट्स। तो आपको सिस्टमेटिकली बातों को समझ आने में आसानी रही। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, मैं एक क्वेश्चन और ही लगे हाथों कर लेता हूँ, सो दैट कि हम दोनों क्वेश्चंस को कर लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटा, फिर हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से अपने जूस नोट्स में आ जाता हूं। ये लीजिए सेलिना जेटली, और ये आपके कैपलॉन में है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2। सेलिना जोन्स है, हमने उसको बना दिया सेलिना जेटली, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेलिना जेटली हैज अ रिसीवेबल ऑफ $3655। इसका मतलब ये भी एक कंपनी है और इसको पैसे लेने हैं कितने? $3655, $3665। कब लेने? 31 दिसंबर 2007। एट दैट डेट शी रोट ऑफ अ डेट। बेटे उस दिन इसको ऐसा पता चला कि एक व्यक्ति मर गया, उसकी बैंकरप्सी हो गई, और उससे हमने पैसे कितने लेने थे? $699। तो ये कहानी खत्म हो गई बेटे 31 दिसंबर 2007 में। हम आगे चले तो 2008 में यहां पे क्या लिखा देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2008 एक न्यू क्रेडिट सेल्स, बेटे एक नई क्रेडिट सेल्स हुई, न्यू क्रेडिट सेल्स देखो 2008 में 17,832 का न्यू क्रेडिट सेल्स वाज देयर। हो सकता है बेटे क्रेडिट सेल्स की एंट्री आपको पता ही है, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, पता तो है, कितनी बार बताऊंगा, गलत हो रहा है। एंड दे हैव रिसीव्ड द कैश फ्रॉम कस्टमर्स, और उन्होंने कैश भी रिसीव किया, डेबिट कैश, क्रेडिट 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 अकाउंट रिसीवेबल। बेटे जो कस्टमर्स थे उनसे हमने पैसे लेने थे लास्ट ईयर के, उन्होंने दे दिए तो उनको क्रेडिट कर देते हैं। एंड ऑल्सो रिसीव्ड 899 फ्रॉम दिस, देखिए वो जिसको हमने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था उसको रात को सपने में आया कि भैया पैसे दे दे पैसे दे दे, तो वो 2008 में पैसे देने आ गया। इट मीन्स देयर इज अ बैड डेट रिकवरी ऑल्सो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए जी, देयर आर 2 years, वन इज 2007, सेकंड इज 2008। 2007 में एक बैड डेट हो जाता है, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, फिर हम 2008 में आ गए। 2008 में क्रेडिट सेल्स होती हैं, 2008 में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स होता है, 2008 में बैड डेट रिकवरी होती है। तो बेटा 3 एंट्रीज यहाँ पे करेंगे, एक एंट्री यहाँ करेंगे, पोस्टिंग प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसके लिए बड़ा आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग नोट। तो आइए मैं उसी वर्किंग नोट में सीधा ही आ रहा हूँ, ध्यान से बेटे, ध्यान से देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव अगेन प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन। मैंने अब टाइमलाइन थोड़ी सी लंबी बनाई क्योंकि यहां तक तो 2007 ही है, यहां तक 2007 है, यहां तक 2007 है, और यहां पर 2008 है, यहां से 2008 है, यहां से 2008 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Up to this point the year is 2007, after that the year is 2008। तो मेरे को 2 years की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। 2007 में देखिए एक कस्टमर को मैंने मार दिया, मर गया, ये मर गया बेटे, $699 लेने थे। इट विल बी ट्रीटेड एज अ बैंक बैड डेट, सो हमने इसको बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे।
क्रेडिट सेल्स हमने 2008 में की है 17,832 की. कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 16,936. रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, जो रिकवर्ड, जो बैड डेट्स वर देयर विच आई हैव डेबिटेड, विच आई हैव ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर 2007, दोज वर रिकवर्ड इन 2008. ठीक है जी, आराम से बेटे. कैश, भूपेश आनंद आपको जर्नल एंट्रीज पास कराएगा. कैप्लॉन में डायरेक्टली लेजर अकाउंट है बेटे, समझ ही नहीं आएगा. आप देखिए फर्स्ट एंट्री मैंने लिखी है आपके सामने, डेबिट बैड डेट्स. बिकॉज 2008 में $699 हैज द बैड डेट्स एंड वी आर treating it as a irrecoverable debt and we are passing the entry for that. debit bad debts, credit accounts receivable. 2008 आ गया बेटे. मैंने क्या किया, सबसे पहले तो क्रेडिट सेल्स कर दिया. कैश या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कर लेते हैं. कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, डेबिट कैश. नाउ व्हाई वी आर डेबिटिंग कैश, वो आपको मैंने 10 बार बता दिया है, गला दर्द हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा. क्रेडिट रिसीवेबल्स 16,936. देन वी डिड क्रेडिट सेल्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स 17,832 का हमने रिसीवेबल डेबिट किया. और उसके बाद हम आगे बेटे यहां पर हमने रिकवरी ऑफ बैड डेट्स कर लिया. रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. डेबिट कैश, क्रेडिट रिकवरी ऑफ बैड डेट्स $699. ठीक है जी. देन वी हैव प्रिपेयर्ड रिसीवेबल्स अकाउंट. फिर हमने रिसीवेबल्स अकाउंट प्रिपेयर किया. बैलेंस ब्रॉट डाउन 3655, पिछली बार का आ रहा है, हमने वो एंट्रीज पोस्ट कर दी. इररिकवरेबल डेट 699, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2956, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2956, क्रेडिट सेल्स 17832, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स 16936, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 3852. बेटे बाकी तो कैप्लॉन में भी दिया हुआ है, बट मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज करके उसकी पोस्टिंग की कि आपको बात समझ आए. ठीक है जी. फिर देन आई हैव प्रिपेयर्ड बैड डेट अकाउंट. बेटे बैड डेट मैंने बनाया होगा 2007 में और उसका बैलेंसिंग फिगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया होगा. एंड देन इन 2008 आई हैव प्रिपेयर्ड रिकवरी फॉर बैड डेट्स. अगेन द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट, बिकॉज दिस इज द इनकम एंड दैट बैड डेट इज अ लॉस. इनकम और लॉस का बेटा जितना भी बैलेंसिंग फिगर होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैंने रिकवरी फॉर बैड डेट अकाउंट बनाया और उसका जो भी कैश रिसीव किया दैट हैज बीन ट्रांसफर टू बैलेंसिंग फिगर, हैज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. चलिए जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट कंसेप्ट को बताने के लिए. मैं आया सर, लास्ट कंसेप्ट है बेटे इस लेक्चर का, इसके बाद तो लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज इन रिलेशन टू प्रोविजन फॉर डेटर्स. दिस इज इन रिलेशन टू अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, अकाउंटिंग फॉर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स. बेटे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, अंदेशा लग रहा है, बेटे सूर्य आने से पहले आपको आकाश में लालिमा दिखनी स्टार्ट हो जाती है, रोशनी कुछ लाल लाल हो जाता है बेटे स्काई. अब आपको पता चल जाता है सूर्य आने वाला है. इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद बैड डेट्स हो सकते हैं ड्यू टू सो मेनी साइंस. देन एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, एज पर समझदारी कंसेप्ट, यू हैव टू बुक दैट लॉस, दैट फ्यूचर लॉस टुडे. और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाएंगे. बेटे प्रोविजन का मतलब है कि लॉस होने की संभावना है, लॉस हुआ नहीं है, लॉस हुआ नहीं है तो हम अपनी इनकम को कम कर देंगे. अच्छा जब हम इनकम कम करेंगे तो हमारा कैपिटल भी कम होगा. अच्छा जब कैपिटल कम होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे. अच्छा कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, उसका रीजन डेबिट करेंगे, एंड द रीजन इज प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग, सो वी आर रिड्यूसिंग दैट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेटर्स को क्रेडिट करेंगे. देखिए जी ऊपर लिखिए, हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग फॉर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट. इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन फ्यूचर, लिखना बेटे, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन फ्यूचर. अब रीजंस भी लिख दिए. देखिए आप, कस्टमर ना नुकुर कर रहा है, कस्टमर को फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, ये हमें पता चल रहा है. कस्टमर ना नुकुर कर रहा है, दूंगा देता हूं, लड़ाई झगड़े की बातें करता है, फोन करो उठाता नहीं है. मैंने लास्ट क्लास में आपको वीडियो भी दिखाया था. कस्टमर इज रिफ्यूजिंग टू पे, वो कहता नहीं करना, जो करना कर लो. बेटे अब इन सभी केसेस में ये आपको एस्टिमेशन हो गया है कि लॉस हो सकता है. नाउ फॉर दैट लॉस यू हैव टू प्रोवाइड टुडे. आज ही कमर कस लो, समझदार हो तो, और उसकी एंट्री पास कर दो बेटे. इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस,
इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट। अब इसको हम लास्ट में फिर प्रॉफिट लॉस में तो ट्रांसफर करते ही हैं, तो वैसे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, डेबिट प्रॉफिट लॉस, बट ठीक है। इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस या बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, क्योंकि अभी हुआ नहीं है इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट नहीं कर रहे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? चलिए जी, तो आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 एक कर लेना आप। बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आप अगर मेरे साथ साथ हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं बना रहे हैं, तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज समवट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अकाउंटेंट एंड बिजनेस एबी। ठीक है, आपके बेसिक कंसेप्ट लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे और आप बिल्कुल खाली रह जाएंगे। अगेन यू हैव टू पे मी एज वेल एज टू ACCA। सो एज पर अ प्रूडेंस कंसेप्ट आपको नोट करना है बेटे, 11 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए, अब तो सिलेबस भी आधे से भी कम रह गया, और आप अभी भी सोच रहे हैं बनाएं ना बनाएं, करें ना करें। नहीं बेटे, जल्दी से चैप्टर 12 प्रोविजंस के ऊपर है, चैप्टर 12 पेबल्स के ऊपर है, चैप्टर 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के ऊपर है। 3 मुद्दे डिस्कस करने हैं हमने चैप्टर 12 में, और आप प्लीज चैप्टर 11 तक अप टू डेट हो जाइए। फिर हम मिलते हैं चैप्टर 12 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।